Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. So kids, up to now we have done few questions based on fractions. ठीक है? So today also we are going to do questions based on fraction only. ठीक है? फ्रैक्शन पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं. आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन जो करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. नाउ क्लास व्हाट वी हैव टू डू टुडे, आज हमने क्या करना है. अगर हमें क्वेश्चन फ्रैक्शंस के करने तो वी विल डू द वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? हम करेंगे आज वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो टेक आउट योर नोटबुक. Take out your notebook and yeah, let us start. So I was just checking the lights. ठीक है, I was just checking the lights whether it is okay or not. So from the last few days हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रैक्शंस पे. आज भी हम कुछ जो क्वेश्चंस करेंगे वो फ्रैक्शंस पे ही बेस्ड होंगे. So I'm going to write down that question. Now question number 1. Question 1 is a word problem. But before moving toward the word problem, let us do few questions. Okay, let us do few questions. Now, the question that we are going to do is, first is, write sorry, the following, write the following fractions in words. Write the following fractions in words. जो फ्रैक्शंस है उन्हें आपने किस में लिखने हैं? वर्ड्स में लिखना है. जो फ्रैक्शंस है उसे आपको किस में लिखना है? आपको वो फ्रैक्शंस वर्ड्स में लिखने हैं. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज 2/5. Second is 3/6. Four upon 7. 5/10. Fifth one is 6/8. So these all are the questions. And आपने क्या करना है? इसे आपने इसे किस में लिखना? You have to write them in words. Okay, so write it down. Come on. Completed? Okay. First is 2/5. ठीक है, 2/5 we will write as 2/5. 3/6 will be 3/6. 4/7. 4/7. 5/10 will be 5/10 को क्या लिखेंगे? 5/10 को we will write 5/10. Okay, तो 5
upon 10 will be 5, 10. Next is 6 upon 8. 6 upon 8 will be 6, 8. ठीक है, 2 5th, 3 6th, 4 7, 5 10, 6 8. ठीक है, इस तरह से हमने किया. नाउ नोट इट डाउन, देन वी विल मूव अहेड. Note it down, then we will move ahead. Now, I'm going to erase the board. Okay. Now the next question. Next is a word problem. Rohan has 39 crayons. Rohan has 39 crayons. Out of which 5 are blue, 6 are green, 5 are blue, 6 are green, 2 are pink, 8 are yellow, and rest of the crayons are purple. Rest of the crayons are purple. Find out the fraction of each color or each crayon. Find out the fraction of each crayon. ठीक है, हर एक कलर के क्रेयॉन की फ्रैक्शन बतानी है हमें. अभी पिछले कुछ दिन से हम इसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, कम ऑन डू द क्वेश्चन आंसर. जैसे मैम ने सीखा, यू हैव टू डू लाइक दैट ओनली. Come on, complete this work.
Now Rohan has 39 crayon, out of which 5 are blue, 6 are green, 2 are pink, 8 are yellow, rest of the crayons are purple. Find out the fraction of each crayon. Completed? Okay. Let us do the answer. So Rohan has 39 crayons. First statement will be, you all know very well. Total number of crayon equals to, wait, first statement will be total number of crayons equals to number of blue crayon number of green crayon number of green crayon and number of pink crayon. Number of pink crayon. Then yellow. Number of purple crayon. चलो सबके नंबर्स लिख रहे हैं एंड देन व्हाट, फ्रैक्शन फाइंड आउट करने. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सभी नंबर्स के क्या लिखोगे, पहले नंबर, टोटल नंबर कितना है, ब्लू क्रेयॉन, ग्रीन, पिंक, येलो एंड पर्पल. अब देखो पर्पल के लिए क्या है, रेस्ट ऑफ द क्रेयॉन्स आर पर्पल. तो दिस यू हैव टू डू व्हाट, दिस यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने क्रेयॉन्स हैं. ठीक है, चलिए करिए, सबके नंबर लिखो और उसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ो. कम ऑन. कंप्लीटेड. Okay. Now total number of crayons are 39. 39 is the total number of crayons. 5 are blue, 6 are
green, 2 are pink, 8 are yellow एंड नाउ पर्पल के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा. कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सभी को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 39 में से. नो 39. ओके, अब इसमें से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? इन लोग का सम. तो लेट अस फाइंड आउट द सम. फाइंड आउट करो रेस्ट ऑफ द क्रेयॉन्स के सम कितने हैं. Okay. Now see. 6 plus 2 8, 8 8 16, 16 plus 5 21. So 39 minus 21 and 39 minus 21 will give us 18. So number of purple crayon is 18. Fine. Now let us write the fractions. Okay. So fraction of blue crayon, fraction of which crayon? Blue one. ठीक है. So the fraction of blue crayon ठीक है. Fraction of which crayon? Blue one. Okay. Next is what? Fraction of blue हो गया. Fraction of green crayon. चलो फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन क्रेयॉन. Then fraction of pink, yellow and purple. Pink, and then fraction of purple. Fraction of which color crayon? Next is purple. Fine. Now, chalo find out the fraction. फ्रैक्शन ऑफ ब्लू क्रेयॉन. कितने थे ब्लू? टोटल ब्लू कितने थे? 5. ठीक है. 5 ब्लू थे. टोटल कितने थे? 39. ग्रीन क्रेयॉन की बात करें 6 अपॉन 39. पिंक क्रेयॉन की बात करें अगर तो 2 अपॉन 39. येलो क्रेयॉन, पर्पल क्रेयॉन. ठीक है. ये क्वेश्चन हमने कर लिया. नाउ नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन.
एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो सभी बच्चे. Now can we move ahead? Okay, so ma'am is going to erase the board. Okay, now the next question. Next question is, there are 48 students in a class on Monday. 12 students were absent. On Monday what happened? 12 students were absent. Find out the fraction of present student. Come on, do this question. So the question is, there are 48 students in a class. On Monday, 12 students were absent. Find out the fraction of present student. Okay. Total number of students is equals to 48. Next is number of students abs.
it should be absent, no? ठीक है, अब number of student present we have to find out. तो जब टोटल स्टूडेंट 48 है, उसमें से 12 एब्सेंट है, तो कितने बच्चे प्रेजेंट होंगे? फाइंड इट आउट. ठीक है, अभी क्या फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट दोज वर प्रेजेंट. क्या होगा? प्रेजेंट स्टूडेंट 36 अपॉन 48. ठीक है, 36 अपॉन 48 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट दोज वर प्रेजेंट. चलो नोट इट डाउन, नोट करो इसे. Okay class, so I am going to erase the board now. Okay class, now what happened, you have completed up to here. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कर लिया, फ्रैक्शंस में बाकी की चीजें हम समझ के. ना एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं और अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सर्कल को 1/4 पार्ट में आपने क्या करना है? शेड करना है. देन हाउ यू विल डू? कैसे करेंगे 1/4 पार्ट में शेड इस फ्रैक्शन को, इस सर्कल को? राइट, फर्स्ट वी विल मेक अ 4 डिवीजन एंड उसमें से कितना पार्ट हमने शेड करना है? कितने पार्ट को शेड करना है? जस्ट 1 पार्ट. सो इस 1 पार्ट को हम क्या करेंगे? वी विल शेड दिस 1 पार्ट. गॉट इट? तो 1 पार्ट क्या हो गया? इसमें शेड हो गया. ठीक है, तो फ्रैक्शन इज ऑल अबाउट दिस ओनली. नाउ इन कमिंग क्लासेस वी विल डू सम क्वेश्चन ऑन दिस टाइप ऑफ पिक्चर. ठीक है, अभी आने वाले कुछ क्लासेस में हम इस तरह के पिक्चर को कलर करके देखेंगे. तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल पार्ट कितने थे? 4. वो 4 हमने कहाँ लिखा? डिनोमिनेटर में लिखा. 4 हमने कहाँ लिखा? डिनोमिनेटर में लिखा. फाइन. और 1 पार्ट शेड किया तो 1. और अभी अगर सेम फ्रैक्शन का अनशेडेड पूछा जाता तो कितने अनशेडेड है? 3. और टोटल कितना है? 4. सो क्या हो जाता फिर? 3/4. सो ओके. ओके क्लास, नाउ दिस इज इट फॉर टुडे. ठीक है, आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा. ठीक है, नाउ इन कमिंग फ्यू क्लासेस वी विल डू सम मोर क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड नाउ मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.